and welcome. Welcome back to Class 12 CBSE Chapter 2 Lost Spring. We are off with the spring season and we are into summers, and that is when we are dealing with this chapter Lost Spring. As previously I was dealing with the part 1 of the chapter, I told you how the author Anish Jung has in this book Lost Spring dealt with many such stories of poor children. But in the book Flamingo of your class 12 main course book, there are only 2 chapters from that book Lost Spring by Anish Jung which has been included. First one we have talked about was all about the rag picking boy Sahib, who finally changes his profession and enters into the tea business. Not exactly tea business, he is employed as a servant in a tea stall. From there we are moving on to another boy, but they are bangle makers. Okay, they are basically bangle makers, and this boy doesn't want to follow his father's footstep or his grandfather's footstep and become a bangle maker himself. He wants to drive a car. He wants to go into the car mechanic business, right? So this part is equally interesting, equally intriguing. So let's learn about this boy Mukesh as well. सो लॉर्ड स्प्रिंग का पार्ट 2 आज हम लोग करने जा रहे हैं. इस बार हम जानने वाले हैं बैंगल मेकिंग चिल्ड्रन और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में एक मेन कैरेक्टर के द्वारा. और वो मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट जो है वो है मुकेश. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज आई वांट टू ड्राइव अ कार. सो लेट्स मूव ऑन टू आई वांट टू ड्राइव अ कार. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his own Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. So this boy, Mukesh, insists, मतलब वो बहुत ही तरीके से बोलता है, बहुत ही जोर दे करके बोलता है कि मैं तो ड्राइव करने वाला का और मैं मोटर मैकेनिक बनने वाला हूँ, और वो अनाउंस कर रहा है. ठीक है, तो मैं उससे पूछती हूँ अनीश सिंह, यहाँ पे जहाँ पर भी आई इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ द ऑथर. सो मैं यहाँ पर पूछती हूँ कि क्या उसे ड्राइव करना आता है. तो वो बिल्कुल घबराता नहीं. ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द काइंड ऑफ लोकेलिटी ही इज़ इन द स्ट्रीट्स एंड इट्स डस्ट एंड फिरोज़ाबाद विच इज़ ओनली फेमस फॉर बैंगल मेकिंग. एवरी वन इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड मतलब जुड़े हुए हैं बैंगल मेकिंग बिजनेस से. लेकिन वो एकदम उसका सपना एकदम तय है, फिक्स्ड है. एंड हिज ड्रीम इज लूमिंग मतलब घूम रहा है, आसपास घूम रहा है, लाइक ए मिराज का मतलब होता है एक ऑप्टिकल इल्यूजन होना, कि दूर का चीज़ पास दिख रहा है, इस तरह का इल्यूजन होना. और ये मिराज एक डस्टफुल स्ट्रीट में नज़र आ रहा है, अमिट्स मतलब उसी बीच में नज़र आ रहा है. लेकिन फिर भी ही इज़ वेरी स्टर्न, ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड अबाउट हिज एम्बिशन इन लाइफ. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. फिरोज़ाबाद जो है वो सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का. यहाँ पर ग्लासेस के काम ही होते हैं. वे फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, बिल्डिंग ग्लास. बिल्डिंग करना तो आप जानते हो, गर्म करना, उसको पिघलाना. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द women in the land, it seems. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces. Furnaces मतलब जो जलता हुआ बड़ा सा हम लोग फर्नेस देखते हैं ना, जो जिसमें कि तरह तरह की चीज़ें जलाई जाती हैं, गर्म की जाती हैं. ठीक है, तो फर्नेस में बच्चों का काम करना इलीगल है, अनलॉफुल है, ये उनको पता नहीं है. इन फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स, इन डिंगी सेल्स. डिंगी मतलब छोटे और तंग और गंदे. ठीक है, सेल्स मतलब छोटा सा रूम. ठीक है, विदाउट एयर एंड लाइट, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड get him and all those 20,000 children out of that hot furnaces where they slog their daylight hours. Slog means work hard, go on working harder, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. So
वहाँ पे सिर्फ मुकेश नहीं है, मुकेश के जैसे और 20,000 बच्चे हैं जो उन फर्नेसेस में, उन डिंजी सेल्स में काम कर रहे हैं। डिंजी मतलब जो बहुत ही कंजस्टेड और बहुत ही गंदा है, वैसे जगहों पे काम कर रहे हैं और पूरा दिन निकाल देते हैं उन फर्नेसेस में काम करने के लिए। और मुकेश जो है इस सब चीज़ों के बावजूद भी जब मुझसे मिलता है तो मुझे वॉलंटियर करता है मतलब खुद से वो बोलता है चलो मेरे घर पे, और वो बताता है बहुत प्राउडली कि उसका घर रीबिल्ड हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. तो जो अनीश जंग जो है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला उड़ीसा, बट शी स्टडीड इन हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी। हर एंटायर फैमिली है ना, इंक्लूडिंग बोथ हर पेरेंट्स, दे वर लिटरेचर ओरिएंटेड, दे वर राइटर्स, ठीक है। उनके पापा इंग्लिश उर्दू दोनों में ही लिखते थे। उनकी मम्मी और उनके भैया दोनों उर्दू के पोइट्स हैं। और अनीश जंग ने फिर यूएसए में जाकर भी पढ़ाई की, तो उनके जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही टचिंग डिस्क्रिप्शन होता है, राइट। हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट जब वो घर के बारे में डिस्क्राइब कर रही तो कैसे बता रही कि स्टिंकिंग मतलब गंद आ रहा है, और वो चोक्ड है मतलब एकदम दम घुट जाए ऐसे गार्बेज एरिया में वो घर बने हुए हैं। और उनके जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो क्रम्बल कर रहे हैं। क्रम्बल करना मतलब जैसे टूट फूट जाना है ना। वोबली डोर्स है, वोबली मतलब ऐसे ही मतलब हिल डुल रहे हैं, किसी तरह से लटक के है। विंडोज़ नहीं है। और ये जो सारे फैमिलीज एंड हाउसेस हैं ये बहुत क्राउडेड है, और यहाँ पे ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट करते हैं एकदम प्रीमिवल, मतलब पुराने ज़मानों में, मतलब सैकड़ों साल पहले जैसे एनिमल्स ह्यूमंस साथ में रह जाते थे वैसे यहाँ पर रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वोबली आयरन डोर। बैंग्स मतलब खटखट करता है। वोबली तो मैंने बताया कि ऐसे लड़खड़ा रहा है, किसी तरह से अटका हुआ है। विथ हिज फूट एंड पुशेस इट ओपन। एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। एक शैक जैसा है, मतलब बहुत बड़ा सा घर नहीं है, एक किसी तरह से छोटा सा शैक जैसा है जो कि अभी हाफ बिल्ट है, वो पूरी तरह से बना भी नहीं है, और वहाँ वो एंटर करता है। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove, over which a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. तो जैसे उन लोग घुसते हैं तो सबसे पहले किससे मुलाकात होती है? मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ से, जो कि खाना पका रही होती है। और स्पिनच मतलब पालक का सब्जी सिजल कर रहा होता है। सिजल मतलब कट 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 की जो आवाज़ आती है जब सब्जी चढ़ी हुई होती है, तभी वैसे सिजल कर रहा होता है। और प्लेटर्स मतलब बड़े बड़े थाल वगैरह में, जो कि एल्यूमिनियम क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड स्टील, है ना, तो उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही काम करना पड़ता है। उसमें और भी चॉप्ड मतलब कटे हुए वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। So she is encountering Mukesh's house for the first time, and then she goes on talking about Mukesh and the kind of children in this chapter further, Lost Spring stories of stolen childhood. Again I want to remind you कि Lost Spring जो सीज़न है वो फ्रेशनेस का सीज़न है, वो बूमिंग फ्लावर्स का सीज़न है। तो उस सीज़न को चाइल्डहुड के साथ कंपेयर किया गया है। इन बच्चों की चाइल्डहुड कैसे गायब हो जा रही है, लॉस्ट हो जा रही है, उसी के बारे में ये चैप्टर है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws मतलब हट जाती है, behind the broken wall and brings her veil closer. veil मतलब घूंघट और नीचे करके लाती है to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. तो जब बड़े आते हैं, जब लड़के आते हैं, मुकेश के भाई और उसके पापा आते हैं, तो और अंदर घुस जाती, विड्रॉ करती और अपना वेल को खींच लेती है। और इस केस में जो बड़े हैं वो कौन है? वो एक बैंगल मेकर है, और वो इम्पॉवरिश्ड है, मतलब
पुअर हैं, बहुत पुअर हैं. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी कि वो हार्ड लेबर किए हैं, बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं. फर्स्ट एज अ टेलर, देन एज अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस. वो पहले टेलर थे, फिर बैंगल मेकर रहे, लेकिन फिर भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए, फिर से बना नहीं पाए हैं जो अब वो बना रहे हैं. तो अब ना वो अपने घर को रेनोवेट कर पाए हैं, ना ही वो कुछ और कर पाए हैं, ना ही he has sent his two sons to school. The sons could not go to school as well. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. So all he has done, Mukesh के फादर, वो सिर्फ इतना ही है कि वो उनको बैंगल मेकिंग ही सिखा सके हैं. इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from the polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? Lineage मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा हो, ऐसा कुछ. ठीक है, तो मुकेश की दादी बोल रही है ये तो उसका कर्म है, ऐसा तो होना ही था. क्या गॉड गिवन जो लीनियज है, जो कास्ट में हम लोग पैदा हैं, उससे हम लोग क्या बाहर निकल पाएंगे? शी इम्प्लाइज मतलब वो ऐसा बताती है. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spirals of bangles, spirals means circles of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards. तो ये उनके घर में, पास वालों के घर में, आसपास वाले के, हर किसी के घर में, हर किसी के यार्ड में उन्होंने सिर्फ बैंगल्स ही देखा है. और ये बैंगल्स जो है माउंट्स में मैंने इकट्ठे होकर रहते हैं. माउंट्स मतलब छोटे छोटे हिलॉक जैसे बने हुए हैं, उसमें जैसे बैंगल्स लटके हुए रखे हुए रहते हैं. एंड दे आर केप्ट ऑन अनकेप्ट यार्ड्स. अनकेप्ट यार्ड्स मतलब जो यार्ड्स हैं वो साफ सुथरा भी नहीं है, वहाँ पर ही पाइल होकर के इनको रखा जाता है. कभी कभी इनको पाइल करके ऑन 4-wheel हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शांटी टाउन. ये टाउन जो है ये शैक जैसा है, एक छोटे से घर जैसा है. उसी टाउन के अंदर कभी कभी 4-wheel कार्ट में कोई बैंगल्स बेचता हुआ भी नजर आ जाता है. एंड इन डार्क हटमेंट्स मतलब छोटे छोटे हट है ना, जो झोपड़ी जो है वो बहुत सारे अगर साथ में हो तो उनको हटमेंट बोला जाता है. नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर मदर वेल्टिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स. दे हैव सीन ऑल काइंड ऑफ कलर्स ऑफ बैंगल्स, है ना, वो पैडी ग्रीन कलर हो, वो सनी गोल्ड कलर हो, रॉयल ब्लू कलर हो. क्यों? क्योंकि उनके पापा मम्मी के साथ वो बैठकर यही करते हैं, बच्चे भी. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. वो डार्कनेस के ज़्यादा अभ्यस्त हो गए हैं क्योंकि वो डार्क में ही काम करते हैं और उनको लाइट से प्रॉब्लम होती है. इसी वजह से और इसी डस्ट और इसी डार्क और लाइट के वजह से जो मुकेश के ग्रैंडफादर थे वो ब्लाइंड भी हो गए थे. That is why they often end up losing their eyesight. ठीक मुकेश के ग्रैंडफादर की तरह बाकी भी बहुत जन अपने आईसाइट गवा देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट्स. और छोटे बच्चे तो एडल्ट होने से पहले ही आंखें गवा देते हैं. सविता, या यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. तो सविता वहीं पर ही बैठी हुई थी, एक और छोटी सी लड़की. वो ड्रैप पिंक कलर का, मतलब बहुत ब्राइट नहीं, ड्रैप इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ब्राइट. ठीक है, पिंक कलर का वो ड्रेस पहनी हुई थी और एक एल्डरली वुमन के साथ में बैठ करके शोल्डरिंग, देखो वर्ड का चुनाव है ना, शोल्डरिंग. क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड बट शी इज़ शोल्डरिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. एक आर्मी मैन की तरह वो वहाँ पर खड़ी है, डटी हुई है, ताकि अपने फैमिली को पैसे कमा करके दे सके. So what they are engaged in bangle making, which is not supposed to be their case, as her hands move mechanically like the tongs of machine. tongs मतलब 2 हिस्से जब होते हैं, जैसे कैची के tongs होते हैं, ठीक है. I wonder if तो मशीन के tongs की तरह उसके हाथ काम कर रहे हैं फटाफट. If she knows the sanctity of bangles, she helps makes. तो ये जो sanctity होता है bangles का हमारे हिंदू कल्चर में, जो कि सुहाग के साथ ऑस्पिशियस माना जाता है, सैंक्टिशियस माना जाता है, पायस माना जाता है. ठीक है, ये उसको पता भी है कि नहीं, वो इतनी छोटी, उसको शायद पता भी नहीं है. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. ठीक है, सुहाग को रिप्रेजेंट करता है, वो उसको शायद पता भी नहीं. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल. ये
डॉन ऑन होगा उसके अंदर, उसके दिमाग में ये पहली बार शायद आएगा जब वो खुद दुल्हन बन करके, खुद एक रेड कलर का वेल ओढ़ करके बैठी होगी, उसके हाथ डाइड होंगे हिना से, मेहंदी लगे हुए होंगे, एंड रेड बैंगल्स रोल ऑन टू हर रिस्ट, और लाल बैंगल्स वो रिस्ट में पहनी होगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. तो ये जो ओल्ड वुमन है वो भी जैसे कभी दुल्हन बनी थी वैसे ही सविता भी दुल्हन बनेगी एक दिन. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज. तो ये जो एल्डरली वुमन सविता के साथ बैठी हुई है वो कहती है कि भाई साहब हमने तो एक वक्त शेर भर, है ना, मुश्किल से शेर भर खाना भी नहीं खाया. इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसका वॉइस भी, उसमें कोई जॉय नहीं है. शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ. वो कह रही कि एक फुल मील भी मैंने कभी नहीं खाया है. दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, और यही उसने कमाया है. रीप्ड किया है मतलब कमाया है. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन with a flowing beard says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. और ये सविता के साथ ही जो औरत थी उसके साथ एक उनका हस्बैंड भी था जो कि काफ़ी ओल्ड है, और वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता अदर देन बैंगल मेकिंग के. तो मैंने सारी ज़िंदगी बैंगल मेकिंग ही की है, लेकिन एटलीस्ट वो बैंगल मेकिंग के भरोसे मैंने अपना घर बनाया है. तो ऑथर सोचती है कि देखो मुकेश के पापा ने तो उतना भी नहीं किया, तो कम से कम इस बंदे ने वो जो घर बनाया है, दैट ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, दैट इटसेल्फ इज सच अ अचीवमेंट फॉर अ बैंगल मेकिंग फैमिली. जो कि हर किसी के पास होना चाहिए घर, वो भी उनके लिए एक अचीवमेंट जैसा होता है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम. तो मतलब खाने तक का नहीं है, घर बनाने तक का भी पैसा नहीं है. ये चीज़ हर घर में जैसे वो गूंज रही है, वो आवाज़ें गूंज रही है. रिंग मतलब गूंजना. द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. लैमेंट मतलब दुखी, दुख की कथा वो यंग मैन भी फॉलो अप करते हैं. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद. ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. टॉयल मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, एंड इनिशिएटिव मतलब उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो कुछ अलग करने की सोच है, वो सब अब वो गवा चुके हैं, क्योंकि ईयर्स ऑफ टॉयल हैज़ ड्रेन देम अवे ऑफ ऑल देयर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव. दे आर ओनली अबाउट बैंगल मेकिंग. सो इन पॉलिटिशियंस, मिडलमैन, पुलिसमैन, इन सब के बीच में ये जो गरीब फैमिली है ये फंसी हुई है, ये ही बताया जा रहा है लॉस्ट स्प्रिंग में. दोनों ही जो हिस्से हैं लॉस्ट स्प्रिंग में, वैसे तो एज ए बुक बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, बट देन ये जो दो स्टोरी स्पेसिफिकली आपके बुक में है, इन दोनों में ही जो झगड़ा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ बिटवीन द पुअर फैमिली एंड द सिस्टम, है ना, the system which are actually dragging them more and more into the clutches of poverty. Together they have imposed a baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. तो ये दोनों मिल करके, एक तो सिस्टम हो गया और एक तो जो इम्पॉवरिश फैमिली हो गया, ये दोनों मिलकर के अपने ही बच्चों के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं बैगेज पॉवर्टी का, और वो उस बैगेज को लेकर के अभी से ही जूझ रहा है, उसको नीचे भी नहीं रख सकता है, और धीरे धीरे वो जब बड़ा होता जाता है तब उसको एक्सेप्ट करने लगता है. वो डेयर नहीं कर पाता है क्योंकि डेयरिंग उन्हें सिखाया नहीं जाता है ग्रोइंग अप ईयर्स में. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. मगर मुकेश में वो डेयर मुझे नज़र आता है, एंड आई फील हैप्पी, आई फील चीयर्ड. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. और वो बार बार बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक होना चाहता हूँ. ही विल गो टू द गराज एंड लर्न, बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. लेकिन वो रुकता नहीं है, वो बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं जितना भी दूर हो मैं जा करके गराज में मोटर मैकेनिक का काम सीखूँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तब जो अनीश जंग है वो और आगे का उसे सोचने के लिए बोलती है और कहती है कि आप तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो. ही इज सडनली साइलेंट. अब वो चुप है. क्यों? नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. वो फिक्सेडली एक तरफ देखते हुए, ग्राउंड की तरफ देखते हुए बोलता है कि नो, नहीं, मैं प्लेन नहीं उड़ाना चाहता हूँ. इन ही स्मॉल ममर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट. वो जो सॉफ्टली ममर मतलब सॉफ्टली कुछ बोलना, विस्पर में बोलना, वो एम्बेरसमेंट नज़र आ रहा है, उसको शर्मिंदगी जो हुई है वो नज़र आ रहा है. दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट. अभी तक वो रिग्रेटफुल नहीं हुआ है, अभी तक वो मतलब किसी चीज़ को लेकर के ये नहीं सोचा कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो
जो उसके जो ड्रीम्स है उसको लेकर के उसमें थोड़ा सा एम्बैरसमेंट है, थोड़ा सा शर्मिंदगी है. ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स. ही इज़ सेटिस्फाइड. कॉन्टेंट मतलब सेटिस्फाइड कार तक ही सोच करके. दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद. तो वो कार्स को वहाँ पे हर्टल करते हुए, आवाज़ करके मूव करते हुए वो देखता है, लेकिन एरोप्लेन्स तो हार्डली वो देखता है. इसलिए उनको जो एटलीस्ट उसके सामने नज़र आ रहे हैं उनको लेकर वो ड्रीम करना चाहता है. जो काफ़ी ऊंचाई पे हैं उतना दूर तक वो नहीं सोचता है. ठीक है. इज़ लिटिल सेंसिबल ऑल्सो. कैन यू सी दैट? So hope you have understood this part of the chapter as well. And what is the chapter called? I want to drive a car. And who wants to drive a car? The central character Mukesh, who is actually from a bangle making पीपल्स फैमिली. ठीक है. सो बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद के फैमिली में को इस लड़के को देख करके अनीश चंद में एक उम्मीद जागती है. वो खुश होती है. शी इज़ चीयरफुल. क्यों? क्योंकि मुकेश जो है वो डेयरिंग लड़का है और वो कुछ अलग करना चाहता है. राइट. आई होप यू ऑल्सो डेयर इन लाइफ एंड डू कीप एन्जॉइंग योर लाइफ बाय एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग मोर. Right. Make your day a great and glorious day. Thank you all. Meet you soon. Please do like, share, and subscribe.